basically it is the we are going to determine the different peripheral devices. There are a lot of peripheral devices are there in that are interfaced with the 8085 microprocessor. So now we are coming back again to the 8085. Basically जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं माइक्रोप्रोसेसर्स जो होते हैं हम दे आर टू वेज ऑफ यूजिंग दैट थिंग बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बाय मीन्स ऑफ हार्डवेयर मीन्स. सो सॉफ्टवेयर मीन्स में क्या करते हैं हम लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. हार्डवेयर मीन्स में क्या करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी not totally software means we start using some peripheral devices, some other hardwares to control, to take the input, to control the input. Instead ऐसा नहीं है कि हम उसमें सॉफ्टवेयर बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, बट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग as a hardware means to be more stable. So let us start with these are the different topics that we are going, different peripheral devices that we are going to cover in this unit. And parallel input, that is USART, DMA controllers, interrupt controller, keyboard displays, process DMA, and we will see, we'll do it one by one. So basically, what are the different requirements of a programmable interfacing devices? The devices should include, there are different uh, requirements for the uh, for the microprocessor or for the any of the system that you are going to develop. So there are certain requirements or certain components of the microprocessor that must be there, and you need to take care of these things. You need to consider when writing a program, when designing some system, some circuit, or with the help of the microprocessor, the microcontroller. So you should include these things. Or if we are not using, that is a different story. But if you take it in the mind that these are the things that are available in the microprocessor or the system or embedded system, we can say, then you need to consider these type of things. So the device should include the input and output registers, or we can say the group of latches to hold the data. So anyone can say कि इसका मतलब क्या हुआ? Input and output registers, a group of latches to hold the data. What does this mean? Yes, anyone? Hifza? No idea, sir. Aman? Aman Malik? Yes, sir. What does this mean in input output registers, a group of latches to hold data? What do you think if you are designing that you need to keep these things in your mind? So what do you think? What does this denote, input and output registers? मतलब क्या लगता है आपको इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स क्या होते होंगे? सर जो इनपुट इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं वो इनपुट रजिस्टर्स. अच्छा, ओके, इनपुट रजिस्टर्स इनपुट इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं. तो व्हाट इज, व्हाई वी आर यूजिंग द रजिस्टर्स इफ वी आर एक्सेप्टिंग, सिंपली एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन? हम इंफॉर्मेशन लें बस इसके थ्रू एंड पास ऑन कर दें. बट व्हाई वी नीड द रजिस्टर्स? सर नो आइडिया. ओके, इसार, यस सर. व्हाट डू यू थिंक? सर जैसे कि हम लोग कोई भी इनपुट ले रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस से, तो वी विल स्टोर इट इन सम रजिस्टर्स सो दैट वी कैन यूज इट आफ्टरवर्ड्स. जैसे कि हम लोग कॉल करना है वापस से किसी इनपुट को, बिल्कुल तो वी कैन कॉल फ्रॉम दैट रजिस्टर ओनली. बिल्कुल, दिस इज वन एप्लीकेशन. अनदर एप्लीकेशन इज, लेट अस से हम काफ़ी सारे आपके डिवाइसेस होते हैं ना, वो हमारे सीरियल डाटा कम्युनिकेशन करते हैं या फिर पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक है, अब क्या किया माइक्रो प्रोसेसर या फिर किसी भी कंट्रोलर डिवाइसेस के अंदर, लेट अस सपोज, है ना, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो जो इनपुट जो बेसिकली जनरेट कर रहे हैं हम पैरेलली जनरेट कर रहे हैं, एंड हमें जो आउटपुट देना है किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को वो हमें सीरियली देना है. तो हम क्या करेंगे, पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे यूएसएआरटी करता है. अभी हम 8251 पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी तो इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स. तो बेसिकली उसके अंदर क्या हुआ, पैरेलल इन्फॉर्मेशन आई और उसको उसको सीरियली ट्रांसमिट करना है. तो व्हाट विल हैपन कि अगर रजिस्टर्स नहीं होंगे टू स्टोर, टेम्परेली स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन स्टार्ट लूजिंग आउट. So it needs some storage element to temporarily store that information so that it can't be used. The information won't be used. जो भी आपकी information है वो
एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसमिट भी हो सके, एंड देन आप नेक्स्ट साइकिल आती है, देन यू विल अगेन retain the information. This is one example. Another example, what SR has said, कि in the later stage, if we want to use this particular information, we can temporarily store that information into the particular register, not for the longer period of time, but for the shorter period of time we can save that information. Next is the tri-state buffers. What does this mean, Saqib? Yes, Saqib. Okay. Fahad. इस तरह से ट्राई स्टेट बफर सर इनपुट और आउटपुट को सर सेपरेट करने के लिए सर Input इस्तेमाल and होते हैं, output. मतलब कि उसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए Isolate करने के लिए. Why we need to isolate? बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम पे कोई डेटा है वो बस पे अवेलेबल है तो हम नहीं चाहेंगे कि वो डेटा अगर हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस्तेमाल करते थे अपना 8085 प्रोसेसर में, जब उसमें एड्रेस बस और डेटा बस आपस में मल्टीप्लेक्स थी, तो हम नहीं चाहते थे कि जो डेटा जो है वो एड्रेस बस पे चला जाए जब हम नहीं चाह रहे हैं उसमें, और इसका वाइस वर्सा भी हो। तो उसको सेपरेट रखने के लिए, डेटा को एड्रेस सेपरेट रखने के लिए और एड्रेस को डेटा सेपरेट रखने के लिए हमको ट्राई स्टेट बफर की जरूरत है। बिल्कुल. This is one example. And how we are going to do this? We provide the high impedance. High impedance means कि आपका जो यस डाटा सर। है वो आपका एड्रेस से मिक्सअप ना हो जाए. इम्पिडेंस प्रोवाइड कर दिया उसमें, हाई इम्पिडेंस. अगर या फिर डाटा है वो एड्रेस से मिक्सअप ना हो जाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर ट्राई स्टेट बफर्स. नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी फॉर डायरेक्शनल डाटा फ्लो. रागिब, ये तो बहुत आसान है आई थिंक. कैपेबिलिटी फॉर बाई डायरेक्शनल डाटा फ्लो, व्हाट डज दिस मीन्स? सर इस केस में हम सर आउटपुट डिवाइस से सर इनपुट में ले सकते हो सर। इनपुट से मतलब सर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से सर हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. नहीं, हम जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है आपका, जो इंटरनल जो आप डिवाइस कह रहे हैं, दे कैन सेंड आउट द डाटा एंड एज वेल एज दे कैन रिसीव द डाटा बाय डायरेक्शनली डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द कंट्रोल सिग्नल्स. राइट रागिब? यस सर। Okay. Next is Rizwan. Handshake and interrupt signals. What do you think? Yes, sir. Handshakes mean communicate each other, How you are going to communicates. communicate? Handshake मतलब sir, मतलब which data and what addresses Which data and we are what used. address? Yes, sir. नहीं. I think ये होगा sir. अदनान, थोड़ा सा और elaborate करना चाहिए था रिजवान. अदनान. सर यस सर, सर हैंड शेक में सर वो सिग्नल होता है कोई भी दो डिवाइसेज या प्रोग्राम के बीच में, उनके बीच कोऑर्डिनेट करने के लिए. जैसे सर जो टेली कम्युनिकेशन में होता है सर, कोई मतलब इंफॉर्मेशन सर एक्सचेंज होती है सर इसमें एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, वो सर हैंड शेक में सर कंसिडर किया जा सकता है. एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी पिन का? सर इनका सर आयु कंट्रोल जो होता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल जो होते हैं सर डिवाइसेस के साथ. ओके. तो उसको कैसे करते हैं हम, हैंड शेकिंग? सर जैसे कि बहुत सारे सर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो सर डेटा मतलब रिलीज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ पर सर क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ सर ऑपरेट करने के लिए सर हम हैंड शेकिंग का यूज करते हैं, जिससे सर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो डेटा जो वो मतलब इजीली से ट्रांसफर हो जाए. हाउ, मतलब कैसे करते हैं हैंड शेकिंग? नहीं, बिल्कुल सही बोला, करते अच्छा हैं हैंड सर, शेकिंग. कैसे करते हैं? कैसे करते हैं सर वो हम्म, ये याद नहीं आ रहा सर. चलिए कोई बात नहीं. एहतशाम, थोड़ा लाउड बोलेंगे एहतशाम जी. बताइए कैसे करते होंगे हैंडशेक? अदनान ने सही कहा, काफी सही हद तक सही कहा. बट हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग? थोड़ा सा लाउड बोलेंगे एहतशाम.
जस्ट सर डेटा बस के थ्रू जैसे हम्म ओके नहीं, एक्सचेंज तो कर सकते हैं, लेकिन Yes, सिग्नल sir. एक्सचेंज कैसे करते हैं? यस फहद। सर डेटा बस के थ्रू नहीं, वो तो पाथवे है ना? यस Okay, sir. फहद, यू आर सेइंग सर समथिंग। इसमें एक्चुअली मैं इसको हैंड शेकिंग पर सही बताया सर वो, बाकी सर जैसे फॉर एग्जाम्पल सर होल्ड एक्नॉलेज है और इंटरप्ट एक्नॉलेज है, तो बिल्कुल सर हमें बिल्कुल इंटरप्ट सिग्नल मिलता है। तो अगर हम डिवाइस जिसने इंटरप्ट हमें भेजा, जब तक कि इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल वो रिसीव नहीं करेगा तब तक के वो इंटरप्ट जो है वो एक्नॉलेज नहीं मानेगा उसको, और जब तक के जो भी उसको फंक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगा। सिमिलरली सर होल्ड के लिए है सर, जब तक होल्ड एक्नॉलेज नहीं होगा डीएम स्टार्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक, मतलब जब तक के, ओके सर। बिल्कुल सही बोला। जैसे जैसे इन्होंने इंटरप्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज कर दिया कि आपने इंटरप्ट भेजी और माइक्रोप्रोसेसर यूनिट ने एक्नॉलेज किया उसको, जब तक उसने एक्नॉलेज नहीं किया इट विल नॉट सेंड इट, है ना? वो उसको एक हैंडशेकिंग हो गया। इन्फॉर्मेशन कब भेजनी है ना? इन्फॉर्मेशन आ गई है, पूरा कंट्रोल बताया है उसने, कि इंडिकेट कर दिया कि when you are going to send this particular information, okay, we get the information, this is the status signal that we are providing. So this is the handshaking, so that the controller or whatever the devices that you are using, they will not lose the information. So for that purpose we basically use these handshaking signals. Next is the control logic. Munisa? Yes, sir. Control logic. Sir, no idea. Abhishek? Sir, Control logic. sir, इतना ही sorry मुश्किल sir, नहीं it's है। there. अरे इतना मुश्किल भी नहीं है, नाम से नाम में ही आपका आंसर रखा है। अहमद? यस सर। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोल लॉजिक क्या होता है? कंट्रोल लॉजिक सर बेसिकली अटैच्ड होता है सीपीयू से, सीपीयू टू रेस्ट द कंप्यूटर ऐसे। ओके, तो करता क्या है ये कंट्रोल लॉजिक? सर बेसिकली जो हम एक एंड यूजर है, हम्म या टर्मिनल यूजर जो भी है, तो उनको एक तरीके से एक्सेस देता है सर। ओके, एक्सेस देता है, किस चीज़ का एक्सेस देता है? सर जो हम इंस्ट्रक्शंस रन करा रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो पूरा करता है सर। ये कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ओके, तो इंस्ट्रक्शन जो हम करा रहे हैं वो तो इंटरनल पार्ट हो गया ना? ऐसा पर इसके थ्रू होता है ना, जैसे वो क्या था सर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होता था। सीपीयू इज द माइक्रोप्रोसेसर, सिंपल। यस सर, तो उसी का एक कंपोनेंट होता है कंट्रोल लॉजिक यूनिट जो होता है सर। ओके ये कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हम अरिथमेटिक या कोई भी ऑपरेशंस करते हैं लॉजिक यूनिट वाले, उसमें सर रिस्पॉन्ड करता है एक तरीके से जो भी हम प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट गोइंग फॉर दिस, लेट अस से आपने रीड राइट ऑपरेशन कराना है, आपने कब रीड कराना है, कब राइट कराना है, दिस इज द कंट्रोल सिग्नल। तो ये पूरे फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अहमद ने बोला, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर ऑपरेशन ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस, या फिर कब इंफॉर्मेशन सेंड आउट करनी है, कब इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, इट इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल लॉजिक। जो भी आपने लॉजिक डेवलप किया है उसके हेल्प से, इट मे बी द हार्डवेयर और इट मे बी द सॉफ्टवेयर वन। नेक्स्ट इज चिप सेलेक्ट लॉजिक। फराज? फराज? फराज सिद्दीकी? चिप सेलेक्ट लॉजिक सर वो कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करना है? कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करना है? बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल दे सकते हैं चिप सेलेक्ट का जो हमने यूज किया? अरे गूगल बाद में देख लीजिएगा फराज साहब। नहीं सर, बोला तो पता नहीं। वो है ना, आपके माउस की क्लिक की बहुत आवाज आ रही है, तेज तेज। सर वो माइक और ओके, काशिफ? यस सर। चिप सेलेक्ट लॉजिक सर मैं सर कौन सा लॉजिक गेट इसमें यूज होगा सर? डिफरेंट लॉजिक गेट में से कौन अप होगा, या कौन हाई या लो होगा?
अगर हमने लॉजिक गेट यूज ही नहीं किया अपने सिस्टम के अंदर, तब क्या करेंगे? सर लॉजिक मतलब पिन भी हो सकता है ना सर? अच्छा, लॉजिक पिन भी हो सकती है, बट अगेन मैंने इसमें एक वर्ड का यूज किया है इन्होंने, चिप। चिप यूज किया है, तो चिप इज नॉट अ पिन, राइट? यस सर। तो ऐसी कोई पिन होती है कि हमें लेट अस सपोज रीड पिन सिलेक्ट करने के लिए कोई हम अगेन कोई और पिन होती है उसके लिए? इज इट सो? ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, या होता है? ओके, राजीव, Yes, sir. व्हाट इज दिस चिप सिलेक्ट लॉजिक? अरे कुछ तो बोल दीजिए राजीव साहब, अटेंडेंस थोड़ी ना है। यस सर एंड नो सर, ना आगे बोलिए कि सर आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। पता है राजीव? No, sir. ओके, तो बोल सकते हैं ना एटलीस्ट कि सर नहीं पता है। सभी हाँ, Yes, sir. चिप सिलेक्ट लॉजिक, व्हाट Yes, डू यू थिंक? sir. यस, शाहिद, Yes, sir. चिप सिलेक्ट लॉजिक। चिप सेलेक्ट लॉजिक सर, इसकी वजह से मे भी सर हम कर पाते हैं सिलेक्शन कोई भी प्रोसेस के लाइक हमें कौन सा चिप चाहिए जिसके लिए हमें कोई ये प्रोसेस डन करवाना है। ओके, बिल्कुल है ना, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। बेसिकली क्या होते हैं, हम पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी एक्सटर्नल डिवाइसेस, बहुत सारी चिप्स होती हैं, जैसे अभी हम देखेंगे भी, और हमने पहले भी कुछ चिप्स देखी हैं जो हम ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर। तो क्या होते हैं, वो चिप कब सिलेक्ट करनी है ना, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, लेट अस सपोज हमने एक मेमोरी सेगमेंटेशन किया था, उसके अंदर भी हमने चिप सेलेक्ट यूज की थी। तो अगेन दे आर डिफरेंट डिफरेंट ना डिफरेंट peripheral devices. So if we want to use that peripheral devices, it must be there must be some signals that can tell you that whether you want to use this particular peripheral device or not, and when to use these particular peripheral devices. So chip select basically select those peripheral devices or any other information जो भी आपने करना है, नाम से क्लियर है, is a chip select logic. There is some logic, some software is there that is used to control these peripheral devices, and not exactly control, to select these peripheral devices. So this is what the chip select logic is used for. Even जितने भी peripheral devices होती हैं ऑलमोस्ट सब में आपका chip select की एक पिन जरूर होती है। The last one is interrupt control logic. Arbab, यस सर। interrupt control logic, सर ये इंटरप्ट को कंट्रोल करता है सर। कैसे कंट्रोल इंटरप्ट करता होगा? सर सर वो एक्सप्लेन करना नहीं आता सर। चलिए कोई बात नहीं। और कौन लेट आया है? आरिफ, यस सर। इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। अरे कोई बात नहीं, हमने अभी अभी पूछा है बस। सर यही है जैसे इंटरप्ट लॉजिक का काम है, ऐसे ही होगा सर, ये इंटरप्ट करना सर। काम ही ऐसा होगा इंटरप्ट करना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं सर। उबैदुल्ला, सर इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक। सर इंटरप्ट को कंट्रोल करता है सर ये। हाउ? सर मल्टी इंटरप्ट इनपुट सोर्सेस को सर सिंगल इंटरप्ट आउटपुट में कन्वर्ट करके। मल्टीपल इंटरप्ट्स को सिंगल इंटरप्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सर चिप। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? सर हम कंट्रोल कर रहे हैं सर इंटरप्ट को। हम कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, मक्स जिसे कहते हैं।
आदित्य आदित्य प्रकाश, यस सर, यस। व्हाट डू यू थिंक? मतलब ये इंटरप्ट कंट्रोल करता है ना, मतलब बहुत से मल्टीपल इंटरप्ट्स हैं उसको। ओके, कैसे कंट्रोल करता है? वही चीज, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत सारे मल्टीपल इंटरप्ट्स होते हैं, देन व्हाट? ऐसे करता है। ओके, अमनदीप। सर मतलब जैसे इंटरप्ट सिग्नल आएगा तो रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली। इंटरप्ट सिग्नल, तो फिर हैंडशेकिंग में फर्क क्या हो गया? हैंडशेक और इंटरप्ट सिग्नल से इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक में दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? है ना, दोनों सेम चीज होगी ना आदित्य फिर तो, राइट? यस सर। है ना। चलिए, अरे किससे पूछा था? आदित्य के बाद में कौन था? आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। अच्छा, अनश, आई एम अनश। यस सर। काफी लेट ज्वाइन किया है, 9:25 पर। सॉरी सर। कोई बात नहीं। इंटर कंट्रोल लॉजिक, व्हाट डू यू थिंक? इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक सर, जैसे इंटरप्ट वगैरह को मैनेज करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए वही होगा सर। एक्नॉलेज नहीं, एक्नॉलेज करने के लिए तो हैंडशेक और इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। हैंडशेकिंग में हम सर एक्नॉलेज उसका करते हैं। मैनेजमेंट जैसे इंटरप्ट के अंदर जितना भी उसको एक्सेप्ट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका मैनेजमेंट यही करता है। ओके, थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे अनुराग? इलेबोरेट करेंगे अनश ने जो बोला, थोड़ा सा उन्होंने काफी। इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट में सर ये होगा ना, क्या कहते हैं, कोई भी हम मतलब कोई आउटपुट डिवाइस या कुछ को दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो इंटरप्ट करेगा, जो काम चल रहा होता है माइक्रो प्रोसेसर और। ओके, तो फिर वो हैंडशेकिंग का मतलब क्या होगा? वो अगेन सेम फंक्शन वो भी कर रहा है ना, एक्नॉलेज करना एंड ऑल दैट थिंग। सर हैंड शेकिंग तो डिफरेंट, सर मतलब टाइम लैग ना हो, सबका स्पीड मेंटेन रहे, इसके लिए यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो फिर आई थिंक फिर इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक क्या हुआ? सर मतलब एक तरीके से प्रायोरिटी किस किस इंटरप्ट की ऊपर जाएगी या नीचे सही, जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरप्ट्स होते हैं, हमें उनको कंट्रोल करना है। लेट अस सपोज पांचों इंटरप्ट्स एक साथ आ गई, विच इंटरप्ट्स टू, किसको एक्नॉलेज करना है? एक्नॉलेज जरूर करते हैं उसमें, जैसे हैंडशेक में करते हैं, बट किसको एक्नॉलेज करना है, कब एक्नॉलेज करना है, किसकी प्रायोरिटी कितनी है? So that is decided by the interrupt control logic. Again, these are both ना simultaneously work करते हैं. So which interrupts to acknowledge? That is, acknowledge का काम interrupt control का नहीं है, वो handshake या interrupt signals का है. Interrupt control का है, okay, this interrupts ये आपकी decide कर देगा कि भाई आपकी ये interrupt हमारी रन होनी चाहिए, और वो माइक्रोप्रोसेसर को बता देगा. अब it is the decision of the microprocessor whether to एक्नॉलेज दैट और नॉट, है ना। यूजली हम, बिकॉज वो मशीन्स हैं, वो आपस में ना सिंक्रोनाइज रहती हैं, वो आपस में रिवोल्ट नहीं करती हैं. सो इट इज लाइक दिस कि हमारा जो इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक बेसिकली डिसाइड्स कि विच इंटरप्ट्स टू सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर देयर, है ना, वीसी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स आर देयर, नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स आर देयर, जैसे हमने पढ़ा था. सो देयर लॉट्स ऑफ इंटरप्ट्स आर देयर, hundreds of interrupts are there. So which interrupts to acknowledge, which interrupts to फर्स्ट एक्नॉलेज, मतलब किसकी प्रायोरिटी कौन सी होगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक. कौन से इंटरप्ट कब जनरेट होती है, दैट इज डिसाइडेड बाय द इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक. सो अगेन, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, दे आर टू वेज ऑफ डूइंग द प्रोसेसिंग, जो भी आपकी है, इधर आपका आपका यूजिंग द सॉफ्टवेयर मीन्स और यूजिंग द हार्डवेयर मीन्स. बहुत सारी चीजें होती हैं. लेट अस सपोज हमें एक्सटर्नल डाटा लेना है किसी भी एक, हम फर्स्ट टिप जो हम देखेंगे 8251 की, उसके अंदर हम एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल जो भी आपका वर्ड है उससे हम डाटा ले रहे हैं. तो यू कैन यूज दिस विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर मीन्स. सॉफ्टवेयर में अपना लॉजिक डिजाइन कीजिए एंड यू कैन एक्सेस, और their secondary option is there, you can use this through the some peripheral devices, जैसे यूएसएआरटी होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, है ना, हार्डवेयर हम प्रेफर क्यों करते हैं? रीजन बीइंग कि बिकॉज दे आर मोर स्टेबल rather than going for the software. Obviously बात है, complexity also reduced. So function and requirements for the software approach and input and output port are required for interfacing, है ना. Obviously unless ना हमारे पास input and output port नहीं होगी तो हम interface तो कर ही नहीं सकते. We need these ports. In data transmission, MPU converts a parallel word into a stream of serial bits, है ना. Microprocessor itself needs to convert this thing. Again उसके पास boundation space की है, remember. So
इन डाटा ट्रांसमिशन एमपीयू कन्वर्ट सीरियल बिट्स इनटू द पैरेलल वर्ल्ड, जो भी आपको जो भी हमें रिसीव करना है ट्रांसमिट करना है, क्योंकि जो भी हमारा डाटा आता है सीरियली जो हम यूएसबी पे लेते हैं वो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू आता है, एंड देन वी कैन कन्वर्ट इनटू द पैरेलल कम्युनिकेशन जो भी हम डाटा ले रहे हैं, एंड देयर आर सर्टेन बिट्स आल्सो दैट आर पैरेलली कम्युनिकेट भी हम कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी हार्डवेयर दैट यू हैव एंड द रिक्वायरमेंट जो आप यूज कर रहे हैं, तो हार्ड पैरेलल एंड सीरियल communication both are possible. So data transfer is synchronized between the microprocessor and the slow responding peripherals through time delays. Again, with the help of the time delays, we can access these things. Apart from that, we have this one example is the USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver and a Transmitter, incorporates all these features instead of going um, for the software purpose. We can go for the hardware purpose, and these features, all the information that we have discussed, 4 different points that we have there. The USART basically have the inbuilt feature for all these purposes. So it's the programmable, that is a function and specification for them can be determined by writing instruction in its internal register. Again, जो भी आपका वो आप इंटरनल रजिस्टर में आप राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये फुल्ली रिप्लेसेबल नहीं है कि आप प्रोग्राम को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दें, बट पेरिफेरल डिवाइसेस आर देयर that helps in easing the load of the microprocessor or the microcontroller, whatever the system that you are using. So the first device is the 8251, a programmable communication interface, universal synchronous asynchronous receiver and the transmitter. So it has a 28 pin dual in package DIP is there, and it has 5 sections basically. हमारे पास 5 sections होते हैं. The first one is the data bus buffer. Second one is the read write control logic जो हमने देखा था. Again you can see chip select is there. And then we have the modem control is there. Then transmitter section. This section is one of the sections. So 1, 2, 3, 4 transmission section and the receiving section. So these are the 5 sections that 8251 has. So basically क्या होता है इसके अंदर हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी हम रिसीवर है ना हमारा रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन के लिए हमारा बेसिकली यूज करते हैं यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर. तो बेसिकली क्या होता है लेट अस सपोज हमें कोई रिसीव करना है कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है आपने तो हम क्या करेंगे हमारा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा रिसीविंग सेक्शन के अंदर आ रही होगी RxD. अगेन हमारे पास कंट्रोल लॉजिक है. वी विल सी ना इन पूरे डायग्राम को हम स्प्लिट करके भी देखेंगे. तो हमारे रिसीवर सेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है इट विल पास टू द इंटरनल डाटा बस एंड इट विल गो टू द डाटा बस बफर एंड विच इंटरफेस विद द माइक्रोप्रोसेसर यूनिट. जो भी आपका हमारा माइक्रोप्रोसेसर यूनिट है उसके साथ इंटरफेस होगा. जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीविंग सेक्शन से आएगी वो डाटा बस के थ्रू डाटा बस बफर में जाके एंड इंटरनल जो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट है वहां पे पहुंच जाएगी. इफ यू वांट टू सेंड समथिंग टू द आउटर वर्ल्ड हम क्या करेंगे डाटा बस बफर बिकॉज इट इज अ बाई डायरेक्शनल बस जैसे हमने बात की थी कैपेबिलिटी फॉर बाई डायरेक्शनल डाटा फ्लो. तो इट हैज अ बाई डायरेक्शनल डाटा बस. तो हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं आउटर वर्ल्ड में ट्रांसमिट भी कर सकते हैं. तो क्या करेगा जो भी आपका माइक्रोप्रोसेसर यूनिट सेंड सम सर्टेन डाटा इंटरनल डाटा बस पे आएगा एंड फ्रॉम इंटरनल डाटा बस इट विल गो टू दी ट्रांसमिशन सेक्शन. ट्रांसमिशन सेक्शन क्या करेगा उस पैरेलल इन्फॉर्मेशन को सीरियली कन्वर्ट कर देगा एंड वी विल सी हम इस सेक्शन को भी देखेंगे थोड़ी देर में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द कंट्रोल एंड रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है ना. ये बेसिकली सिलेक्ट करता है आपका डिफरेंट कि आपने है ना आपने कब कंट्रोल बस की तरह जो अभी डाटा बस बफर जो भी आपका जो इंटरनल डाटा बस है उसमें उसको डाटा सेंड करने के लिए भेजना है आपने एज अ कंट्रोल सिग्नल सेंड करने के लिए भेजना है आपने कब रीड करना है ट्रांसमीटर से सॉरी राइट करना है ट्रांसमीटर पर कब रीड करना है रिसीवर सेक्शन से इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कंट्रोल लॉजिक. ये डिसीजन सारे जो होते हैं वो कंट्रोल लॉजिक डिसाइड करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द मॉडम कंट्रोल. बेसिकली आप टेलीफोन लाइन्स के साथ भी हम यूज कर लेते हैं इसमें. सो वी हैव द मॉडम कंट्रोल इज देयर. अगेन इट इज आल्सो डिसाइडेड टू क्लियर टू सेंड रीड टू सेंड है ना डाटा ट्रांसमिट डाटा रिसीव जो भी आपका सेक्शन जो भी आपने कंट्रोल करना है we will again in few minutes we will see. So basically 8251 has the 5 units. It is divided into the 5 units. The first one is data bus buffer, read write control logic, modem control, transmission section and the receiver section. So again data bus buffer जैसे हमने बताया used to read and write the status command और data फ्रॉम और टू 8251 यानी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जो है वो या तो कमांड दे रहा होगा या फिर कमांड
आपको डाटा सेंड कर रहा होगा, एंड कंट्रोल लॉजिक बेसिकली डिटरमाइंस द फंक्शन कि आप वो किस तरह से आप यूज करना है. So the control logic interfaces the chip with the microprocessor unit, determines the functions of the chip according to the control word in the register, and monitors the data flow. जो भी आपका आपने flow करना है. Transmitter section converts a parallel word received from the microprocessor unit into serial bits and transmit them over the transmission line to a peripheral. Again, जैसे transmission नाम से भी, I mean transmitter section नाम से भी clear हो रहा है. Microprocessor parallelly data वो लेगा, because हमारे we have 8 bit 16 bit data bus, अभी हम 8085 की बात कर रहे हैं तो हमारा 8 bit की हमारी डाटा बस है, तो parallel information provide कर रही है. Parallel information आ गया, and again जो ट्रांसमीटर सेक्शन है उसको डाटा बस बफर जो आपका रजिस्टर है, बफर रजिस्टर है इसके अंदर, उसके उस पे जाके वो स्टोर हो जाएगा, एंड देन इट विल ट्रांसमिट सीरियली टू द आउटपुट. नेक्स्ट इज द रिसीवर सेक्शन, जो बिल्कुल वाइस वर्सा होता है हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन का. इट रिसीव्स द सीरियल बिट फ्रॉम अ पेरिफेरल, converts them into the parallel word and transfers the word to the microprocessor unit. Again, reason being because microprocessor has हमारे पास parallel communication possible है उसके अंदर जो हम provide कर सकते हैं. 8 bits की हमारे पास डाटा बस है, we can easily provide these information parallelly. तो why we use the है ना single serial communication? So we need to convert it to save the time. And modem control is just used to establish a data communication through modems or telephone lines. So these are the different control units. So let's start with the control logics. जो हमारा control logic है इसके अंदर, again हमने जैसे देखा control logics have different pins, reset clock, आपका control and data read write chip select. So let's split this control logic into the different section and see what these pins denotes and what these pins are used for. So basically, it includes the read-write control logic, when to read, when to write, when to use as a control signal, जो आपका डाटा बफर है और जो इंटरनल डाटा बस है, when to use for the data communication. So this decides with the help of the read-write control logic in the registers. So basically, it has 9 हमारे जो signals pins होती हैं, 6 input signals, and then 3 buffer registers that will be controlled through the help of the control logic. And the 3 buffer registers are the data register, control register, and the status register. Let's see these all pins one by one. So the first one is the chip select, जो हमने बात की थी starting में. So chip select 8251 is selected by the microprocessor for communication. This is usually connected to the decoded address bus. Again है ना, address bus basically decide करता है, जैसे हमने उसमें देखा था मेमोरी सेगमेंटेशन के अंदर भी हमने ये चीज देखी थी. तो चिप सेलेक्ट बेसिकली जो आपकी एड्रेस बस है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं, इट विल डिसाइड कि कब ये 8251 का कंट्रोल लॉजिक चिप जो है वो सिलेक्ट होगी, कब नहीं सिलेक्ट होगी. इट विल डिटरमाइंड बाय द एड्रेस जो भी आपको हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर. नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल एंड डाटा CN/D बस. सो when it is high है ना, जब हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कंट्रोल की तरह यूज करेंगे. सो कंट्रोल रजिस्टर और द स्टेटस रजिस्टर इज एड्रेस्ड, जो हमारा कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर है वो हमारा एड्रेस करा जाएगा. एंड व्हेन इट इज लो, इट इज यूज्ड एज अ डाटा बफर इज एड्रेस, जो भी आपका बफर है फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर यूनिट. द डाटा बेसिकली जो है you can use to control the information through this pin. Again, it can be used, है ना, these pins, control and status registers are differentiated with the help of read and write signals respectively. Again इसको synchronized way में हम देखें तो हम read और write जो पिंस है उसके साथ हम यूज कर सकते हैं कि कब रीड करना है कब राइट करना है ना, कंट्रोल सिग्नल भेजना है कब रिसीव करना है, अगेन डाटा कब भेजना है कब रीड करना है. So how we are going to decide? We can decide it with the help of the write and read signals. So microprocessor either writes it in the control registers or send outputs to the data buffer. This is connected to the input output write and memory read. Again है ना, write signal जो है वो आपका डिटरमाइन आपको इनपुट आउटपुट में रीड करना है या फिर मेमोरी में रीड कराना है, कहाँ से रीड राइट कहाँ पे राइट कराना है, आपने एक्सटर्नल डिवाइस पे राइट कराना है, एक्सटर्नल किसी मेमोरी लोकेशन पे आपने राइट कराना है. So again it is used in combination with the input output write and memory write. तो बेसिकली क्या हुआ, आपस में डिपेंडेंट है ये चीजें. चिप सेलेक्ट भी, अगर चिप सेलेक्ट नहीं है तो ये सारी चीजें फंक्शन नहीं करेंगी, जो आपकी जितनी भी पिंस हैं हमारी. जब चिप सेलेक्ट होगी तभी ये सारी चीजें वर्क करेंगी. अगेन कंट्रोल ऑफ डाटा, कंट्रोल एंड डाटा बेसिकली जो कम्युनिकेशन आपने कंट्रोल के सिग्नल्स भेजने या फिर आपने डाटा सेंड आउट करना है. अगेन इट इज यूज्ड
अब कंट्रोल या डाटा दोनों की बात करें तो हम कंट्रोल सिग्नल सेंड भी कर सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं, डाटा सिग्नल सेंड भी कर सकते हैं, डाटा सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं. तो हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दीज थिंग्स? वी आर गोइंग टू डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ रीड एंड राइट सिग्नल्स कि कंट्रोल सिग्नल आपने रिसीव करना है या सेंड करना है, डाटा रिसीव करना है या फिर सेंड करना है. अगेन दिस डाटा और दिस कंट्रोल सिग्नल्स जो भी आपने कर रहे हैं, मेमोरी से रीड करना है या फिर इनपुट आउटपुट से रीड करना है, मेमोरी में राइट करना है या फिर इनपुट आउटपुट में राइट करना है. वी कैन यूज दिस in combination with the input output or the memory write. So write signal MPU either writes in the control register or sends output to the data buffer. This is connected to input output write or the memory read. And the read, again it is the reverse. MPU either reads the status from the status register or accepts input data from the data buffer. Again both दोनों चीजों के लिए इन्होंने यूज की है. And this is connected to the again input output write and the memory read. रीसेट इट फोर्सेस इट इनटू द आइडल मोड. जब भी आप रीसेट क्लिक करते हैं आपका जो भी आपका फोर्स जो भी आपका वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है वो वहां पे जाके पॉज हो जाता है, यानी ना दे विल इट विल मूव इनटू द आइडल मोड, है ना, कुछ काम करना सब कुछ काम करना बंद कर सकता है. अगेन है ना वो है ना जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी हुई है वो इनिशियली लूज नहीं करती है ना. वी कैन यूज स्टिल यूज दैट इन लेटर स्टेज. And the last one is the clock. Clock is basically for the synchronization purpose, used for the communication. अगर clock नहीं होगी and it decides, the clock decides basically तो कितनी स्पीड से आप communicate करना चाह रहे हैं. clock cycle जो होती है अगेन उसकी भी लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं है आप कितना भी ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए अपनी क्लॉक साइकिल. तो ये सब चीज़ें हम डाटा शीट में से देख के पता कर सकते हैं. एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम दीज 6 input signals, we have 3 buffer registers. The first one, the buffer register, is the control register. Again, control register basically this 16-bit register for control word consists of 2 independent bytes. इसके अंदर हमारे पास 2 bytes होती हैं. The first one is the mode instruction, mode word बोल सकते हैं, and the second one is the command instruction. जो बेसिकली मोड वर्ड होती है, इट इज बेसिकली द डिसाइड्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशंस, है ना. जो मोड इंस्ट्रक्शन है किस मोड में आपने वर्क करना है ना. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है, लेट अस सपोज बॉड रेट, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. पैरिटी बिट, दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर ऑफ बिट्स दैट आर प्रेजेंट in the buses, that is basically the mode of the instruction. So mode instruction decides these types of characteristics, general characteristics of the जो भी आपने इंफॉर्मेशन जो भी आपने पास ऑन करानी है. एंड द कमांड इंस्ट्रक्शन, बेसिकली कमांड इंस्ट्रक्शन नाम से भी क्लियर है, एनेबल्स दी डाटा ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन. जो भी आपने डाटा ट्रांसमिट एंड रिसेप्शन करना है, कब रिसेप्शन करना है या डिसेबल रखना है, तो इट इज डिसाइडेड बाय द कमांड इंस्ट्रक्शन. सो control register basically consists of 2 independent, basically 6-bit bytes, 16-bit registers. Again, these further divided into the 2. The first one is the mode and the second one is the command instruction. So this register can be addressed as an output port when the C/D is high. जैसे कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो डाटा बस की बात नहीं करेंगे, हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, नाम से भी क्लियर है कंट्रोल. तो whenever it is high, then only we can use this register, otherwise we are not going to use this register. Next is the status register. Status register basically checks the ready status of the peripherals, है ना, कि जो आपका एक्सटर्नल डिवाइस है, पेरिफेरल जो है वो आपका रेडी है कि नहीं है. So this register can be accessed as an input port when the C/D is high. Again, हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं अभी, तो जब ये आपका C/D पिन जो होगी हाई होगी, जब कंट्रोल आपका सिलेक्ट होगा तभी आपका स्टेटस रजिस्टर होगा. एंड स्टेटस रजिस्टर ऑल्सो टेस्ट ऑल्सो ना जो आपका इसके अंदर स्टेटस वर्ड है, इट्स ऑल्सो टेल्स दी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दी ट्रांसमिशन एरर्स, है ना. रजिस्टर का स्टेटस क्या है, आपका ट्रांसमिशन एरर है कि नहीं है, उसका स्टेटस क्या है. इफ देयर इज सम एरर इज देयर, स्टेटस रजिस्टर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि आपको जो भी आपने कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, वेदर इट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग द सिग्नल्स और नॉट, सेंडिंग द स्टेटस ऑफ द पेरिफेरल्स और नॉट, इफ देयर इज सम एरर or not. So status register defines these things. Data buffer, again data buffer नाम से भी ये क्लियर है, बहुत बार देख भी चुके हैं. दिस bidirectional register can be addressed as an input and output port when the C/D pin is low. Again, when we are using this as a low pin, then only we can use this data buffer register. So again, let's see the split this particular section.
जो हमारा ये वाला सेक्शन है, जो हमारे 2 यूनिट्स हैं बेसिकली, डाटा एंड रीड कंट्रोल लॉजिक, इसको हम स्प्लिट करते हैं एंड वी विल सी। जो हमने अभी देखा, हमारे पास वी हैव द रीड एंड कंट्रोल सिग्नल्स, वी हैव द कंट्रोल्स, डिफरेंट रजिस्टर्स। हमारे पास 3 रजिस्टर्स थे, कंट्रोल रजिस्टर, डाटा बफर रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर 16 बिट का, एंड अगेन स्टेटस रजिस्टर, वी हैव द कंट्रोल एंड रीड लॉजिक इज देयर। सो जब हमारा कंट्रोल रजिस्टर, जैसे हमने देखा कि कंट्रोल रजिस्टर जब भी हमारा C/D पिन हाई होगी, जब कंट्रोल सिलेक्ट होगा, देन कंट्रोल रजिस्टर विल वर्क। जो भी इंटरनल, जो भी आपको कंट्रोल सिग्नल्स हैं, इट कैन रीड, इट कैन राइट द कंट्रोल सिग्नल, जो भी आपने कंट्रोल सिग्नल लेना है। अगेन दीज आर द पर्टिकुलर कंडीशंस जो भी आपने राइट कराना है ना। कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कंट्रोल हम राइट ही करा सकते हैं। again we we have the status registers is there. Again it can be used when the control C/D pin is high, the control pin is high. अगेन स्टेटस की बात कर रहे हैं, स्टेटस हम एक्सटर्नल डिवाइस का, जैसे मैंने बोला एग्जांपल दिया एरर्स का, हम जब रीड करना है with then we are going to use this status register 8 bit जो हमारा है सिग्नल, जो हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमारा C/D पिन लो होगा, then we can use this data buffer register and it can be used in either way, in read or in write mode। आप किसी में भी उसमें आप यूज कर सकते हैं। एंड अगेन वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पिन, जब चिप सेलेक्ट है C/D, जो हम बार बार देखते हैं, कंट्रोल एंड डाटा जो भी आपने सेलेक्ट करना है, रीड एंड राइट सिग्नल्स है ना, जो इस इन कॉम्बिनेशन विद दिस कंट्रोल एंड डाटा बस के साथ, हम कंट्रोल एंड डाटा सिग्नल के साथ हम इसको यूज करते हैं। When we have the reset, we have already seen in the clock signal। किसी को डाउट इसमें अभी तक, or is it clear? Clear। Okay, next section is the transmitter section, जो हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन जो हम स्टार्टिंग में हम देखा। दिस इज ट्रांसमीटर सेक्शन, वी हैव द बफर एंड द कंट्रोल सिग्नल, लेट्स सी एंड स्प्लिट इट। So basically ट्रांसमीटर नाम से भी क्लियर है, इट एक्सेप्ट्स द पैरेलल डाटा फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर यूनिट, बिकॉज हमारे पास 8 बिट की पिन है, 8 बिट की बस है बेसिकली, वहां से वो पैरेलली डाटा लेगा, converts them into the serial data and send it to the जहां पे भी उसको information send out करनी है। And again it has 2 registers, buffer register, output register। again इसके अंदर जो हमारी पिन्स होती हैं, apart from that we have the data set ready pin, we have data terminal ready, जो हमने देखा था DSR DTR आपका clear to send, request to send, we will see here, we can see that thing। हमारा ट्रांसमिट डाटा बफर है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन डाटा यहाँ से आया है डाटा बस बफर से, वो क्या किया, आपका ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर के अंदर सेव हो गया, यहाँ पर सेव कर दिया उसके अंदर। अगेन इसको ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल लॉजिक हम आउटपुट रजिस्टर में प्रोवाइड करेंगे, सीरियली कन्वर्ट कर रहा है इस रजिस्टर के अंदर, एंड देन वी कैन ट्रांसफर इट टू द अदर, जो भी आउटर वर्ल्ड है, जो भी आप जहां पे भी आपने इसको यूज करना है। अगेन the transmitter control logic, we have the different pins, TX transmit clear, apart from that we have transmit ready and TXE basically जो transmit हमारा करना है transmitter sorry empty। तो बता सकते हैं, let's start TXC, what does this mean? Farhan, yes sir। what does this mean TXC? स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एक पिन है TXC, what does this mean? और ये कब पिन यूज की जाती है? नहीं पता सर। Asma, Yes, sir. what does this pin means TXC? So, I didn't know, sir. Suhail, Yes, sir. what does this pin means? Transmitter clock. ट्रांसमीटर क्लॉक, तो क्या डिसाइड करेगा ये? मैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना अभी, आप सब लेट हैं बहुत ज़्यादा।
9:30 के बाद ही आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना सोहेल? यस है ना, इंटरेस्टेड तो है नहीं पढ़ाई में। अफान? के बाद सर यस सर। फरहान? Fran, you are saying something? I think there's some problem with your network, Fran. Affan? यस सर। TXE, what does this mean? ये सर ट्रांसमीटर कंट्रोल के लिए है सर। ट्रांसमीटर कंट्रोल नहीं, इसलिए नहीं होता है। आयुष? आयुष? Yes, sir. TXE? Yes, What does this mean? सर डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है, रेट को। कंट्रोल नहीं है, ये क्लियर है। चलिए हम बता देते हैं। सर उसके रेट को सर। रेट को नहीं, कंट्रोल नहीं बोला मैंने, क्लियर बोला है। TXE क्लियर। खालिद? Yes, sir. TXE, transmission clear. What does this mean? सर कंट्रोल द रेट ऑफ डाटा कंट्रोल कहाँ से आ जाएगा भाई साहब? मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कंट्रोल नहीं है ट्रांसमिशन। सुन तो लीजिए। यस बेसिकली जब भी आपका ट्रांसमिट बफर रजिस्टर जो भी आपका डाटा बस बफर से आपका कोई भी पैरेलल डाटा आया ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर के अंदर, उसने क्या किया, हमारा आउटपुट रजिस्टर में हमारा सीरियली पैरेलल मतलब जो आपका ट्रांसमिट है वो ट्रांसमिट जो भी आपकी पर्टिकुलर बाइट है उसने पर्टिकुलर बाइट ट्रांसमिट कर दी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा जो TXE है ना वो ट्रांसमिट हो चुका है, कंप्लीट ट्रांसमिट हो चुका है। एंड ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर इज एम्प्टी, कुछ नहीं है उसके अंदर। एंड इट इज नाउ, आप उसको रेडी है वो डाटा बफर डिफरेंट बफर रजिस्टर से दोबारा दूसरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो ट्रांसमिट कर चुका है, वो बाइट उसने ट्रांसमिट कर दी है। तो दिस बेसिकली TXE पिन इज यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। हम क्लियर करने के लिए ट्रांसमीटर बफर रजिस्टर को ये स्टेटस सिग्नल रीड कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसमीटर रेडी, TX रेडी। व्हाट डज दिस मीन मुनीसा? ट्रांसमीटर रेडी है, ट्रांसमीटर रेडी है, अब डाटा सेंड करने का। तो उस समय डाटा कहाँ पड़ा होगा? डाटा बफर रजिस्टर पे। डेटा बफर रजिस्टर में। बिल्कुल, डाटा बफर रजिस्टर में रखा हुआ है एंड इट इज रेडी टू ट्रांसमिट द डाटा। TX रेडी पिन इज देयर। एंड द लास्ट वन इज TXE। बता दीजिए क्या होता है? यस सर एम्प्टी एम्प्टी है ना, सब कुछ नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसमीटर सेक्शन के बाद में हमारा आता है रिसीवर सेक्शन, जो सेकंड सेक्शन है। सो इट एक्सेप्ट द सीरियल डाटा ऑन द RXD पिन, जो हमारा रिसीविंग पिन है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू द पैरेलल। उसका बिल्कुल रिवर्स होता है। एंड अगेन वी हैव द टू रजिस्टर्स हियर आल्सो, रिसीवर इनपुट रजिस्टर एंड द बफर रजिस्टर। एंड रिसीवर इनपुट रजिस्टर होल्ड द 8 बिट्स ना, 8085 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा बस है वो 8 बिट की होती है। एंड बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द 8 बिट्स इनटू अ स्ट्रीम ऑफ द सीरियल बिट्स जो है। अगेन यू कैन सी हियर we have the buffer register, बिल्कुल सेम चीज है हमारी। रिसीवर कंट्रोल लॉजिक इज देयर, इनपुट रजिस्टर इज देयर एंड द just a minute. Okay, sorry. So basically again it is similar to the transmission section. So again we have the receiver buffer register is there, जो भी आपकी इनपुट रजिस्टर सीरियली डाटा को ले रहा है वो क्या करेगा, इस बफर रजिस्टर में स्टोर करेगा। एंड देन फ्रॉम दिस बफर रजिस्टर पैरेलली डाटा आपको डाटा बस बफर में जाएगा एंड टू द microprocessor unit. Again we have different pins over here. RXD pin is there, RXC pin is there, RX ready pin is there. So let's start. Bajuddin Khan, roll number 43. Bajuddin Khan, roll number 43. तो आते लेट हैं, ऊपर से जवाब नहीं देते, एब्सेंट ही लगा देते हैं इनकी। बाजुद्दीन खान, who is the next?
बशर इमाम। यस सर। हेलो सर। तो आ सर जाइए नेक्स्ट उसमें आइएगा। बशर इमाम, व्हाट डज दिस मीन RxD? सर RxD होगा सर रिसीवर डेटा। तो इससे क्या, पिन से क्या करते हैं हम? सर से तो डेटा होगा सर रिसीवर में लेने के लिए। अच्छा, डेटा कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है? सर वो ट्रांसमीटर देगा डेटा, वो जो बफर में अगर रहेगा तो फिर रिसीवर रिसीवर लेगा ट्रांसमीटर के बाद। तो फिर भाई जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसमीटर ने डाटा दिया, रिसीवर ने ले लिया उसी डाटा को और वापस माइक्रो प्रोसेसर से हो गया, तो कंट्रोल लूप बन गई भाई सीधी, है ना? ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू यू। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है ना? ये आपका ट्रांसमीटर, जैसे आप कह रहे हैं, है ना? ये आपका ट्रांसमिशन सेक्शन है। ट्रांसमीटर सेक्शन ने किसको दिया? रिसीवर सेक्शन को, जैसे आपने बोला। और रिसीवर सेक्शन ने माइक्रो प्रोसेसर। भाई साहब इतना काम क्यों कराया हमने? डाटा तो अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं पहुंच गया माइक्रो प्रोसेसर पे। क्या फायदा हुआ बशर? नहीं पता सर। फहद, रोल नंबर 45। यस सर। RxD क्या करती है ये पिन? सर नहीं मालूम। विवेक चौहान, यस सर। व्हाट डज दिस पिन डू? सर मतलब सर जब सिग्नल जो है ना सर हाई हो जाता है तो ये रिसीवर बफर रजिस्टर को इंडिकेट करती है कि डाटा जो होल्ड कर रखा है उसे ट्रांसफर करे प्रोसेसर के लिए। वो ये RxD वो करता है, राइट? यस सर। बड़ा बुरा हाल है यार अभी क्लास का, तो है ना काशिफ? यस सर। ये RxD पिन से क्या होता है? सर ये इंडिकेट करता है कि रिसीवर अब डेटा लेने के लिए रेडी है। ना बंधु ना, बिल्कुल नहीं करता ये। अनश, यस सर। क्या करता है ये RxD पिन? सर डेटा रिसीव करता है। डेटा रिसीव करता है ना काशिफ? एंड ऑल जो भी हैं, RxD के पिन के थ्रू ही, ये पिन के थ्रू ही डाटा ट्रांसमिट होता है। डाटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ ना कुछ लिंकअप तो चाहिए ना। TXD पिन था, यहाँ से डाटा सेंड हो रहा था, सीरियली डाटा बाहर निकल रहा था। अब सीरियली डाटा इन जो हो रहा है वो इस पिन के थ्रू हो रहा है। इसके अंदर डाटा है, जो आपका एक्सटर्नल वर्ड या एक्सटर्नल डिवाइस कहीं से भी आपका इनपुट आ रहा है, ये इनपुट है बेसिकली। तो हमेशा RxD पिन से इनपुट आएगा। 9:57 वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर डे आफ्टर टुमारो। एंड थोड़ा पढ़ लीजिए यार आप लोग, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल।